Hello students, hope you all are safe at your home and I hope you all are watching videos which has been uploaded by our teachers for you on our channel. In last lecture we have seen about planning, our chapter functions of management, in which the first function was planning. We have completed its definition, its meaning and its 10 importance point. Now, today we are going to study about organizing. Organizing is the second important function of functions of management. In organizing, we have to study about how the manager organize the things after doing the planning. We have seen in planning how manager plans well in advance about the target, about the achievement of the goal and about the company. Now come students, let we start about the organizing. What is organizing? Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as man, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. Now, organizing होता क्या है? Organize to arrange, to organize. It is to arrange everything, arrange the resources properly, whatever we are having. हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसको प्रॉपरली अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. द रिसोर्सेस सच एज हमारे पास जैसे कंपनी में लगने वाली जो रिसोर्सेस है, सबसे इंपॉर्टेंट मैन, जो लेबर्स, जो एम्प्लॉयज, जो वर्कर्स, फिर मनी, पैसा, फाइनेंशियल हेल्प एंड मटेरियल रिसोर्सेस, मशीन, मेथड, everything are the resources which has to be arranged properly, which has to be grouped and arranged properly for achieving the objectives. In planning management, decide what to be done in future, whereas in organizing function, they decide the way and the means to achieve what has been planned. हम प्लानिंग में क्या करते हैं? हम फ्यूचर में हमको क्या करना है वो प्लान करते हैं, वो हिसाब से हम टारगेट को अचीव करने का एक प्लान ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं. बट ऑर्गेनाइजिंग के समय, ऑर्गेनाइजिंग के वक्त हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से, किस वे से हमने जो प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज करके हम अपने गोल की तरफ और आगे बढ़े. So this function is important for execution of plans which has been prepared by the top level of management people. तो ये जो फंक्शन है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्लानिंग है, ताकि जो हमने प्लान किया है उसको हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें. और ये जो प्लान करते हैं ये कौन करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल के पीपल होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वही लोग ये सब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Organizing involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans. The assignment of activities to appropriate departments and the provision of authorities, delegation and coordination. This definition is given by Coons and O'Donnell. कून्स एंड ओडोनल ने हमको ये डेफिनेशन दिया है अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल. जो भी गोल को हासिल करने के लिए या अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जरूरत है वो सारी एक्टिविटीज को ग्रुप करना, ग्रुपिंग करना, और जो भी हमने प्लान किया है उसको प्रॉपरली अरेंज करना, इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. So organizing involves, organizing के
जो ग्रुपिंग है उसमें ये सब आता है. Involves the grouping of activities necessary to accomplish goal and the plan, the assignment of activities to appropriate departments, and the provision of authorities, delegation and coordination. और साथ ही जो भी एक्टिविटीज हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को असाइन की है, प्रोवाइड की है, दी है, और साथ ही प्रोविजन जो हमने उनको ऑथोरिटीज का दिया है, ऑथोरिटीज प्रॉपरली हमने जो सबको डिस्ट्रीब्यूट की है, बांट के दी है, और डेलीगेशन और अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, और साथ ही इन सभी को हमने कोऑर्डिनेट किया है. इसी का सबका मीनिंग है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको ग्रुप करना, प्रॉपरली प्लान करना और गोल की तरफ अचीव करने के लिए बढ़ना, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट point is facilitates administration as well as corporation operation. Organizing actually is concerned with grouping and assigning the organizational activities among different departments and workforce. Organizing is totally concerned. किस चीज से कंसर्न है ये? ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग वर्क फोर्स में ये एक्टिविटी जो है ये प्रॉपरली असाइन करना और अरेंज करना, इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर दिस. तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है ये किस तरफ लीड करता है? इट लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द एक्टिविटी. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि क्या एक्टिविटी हमको करनी है और उसकी तरफ लीड करना. आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटी. जो भी एक्टिविटीज हमको करनी है उन सबका एक ग्रुप बनाना. ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटी इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो भी एक्टिविटीज हमको गोल की तरफ लेके जाती है, उन सबको ग्रुपिंग करना और उनको प्रॉपरली हर एक डिपार्टमेंट को असाइन करना, ये सब किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का. ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है जो ये ग्रुपिंग और असाइनिंग एक्टिविटीज को करते हैं. जबकि प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी. और उसी एक्टिविटी को जब हम प्रोसेस में लाते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, वो एक्टिविटी को हम स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज ऑपरेशनल एक्टिविटी. जब वो एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है वो एक्टिविटी, जिन जिनको वो असाइन की गई है, दैट इज नोन एज द ऑपरेशनल एक्टिविटी. दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजिंग से हमको क्या फैसिलिटी मिलती है? सबसे पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेते हैं, सारे एक्टिविटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ग्रुपिंग करते हैं, साथ ही उसको असाइन करते हैं. तो इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी आ गया, और जब वो एक्टिविटी प्रॉपरली ऑपरेट होने लगती है, दैट मीन्स ऑपरेशनल वर्क भी आ गया. ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉइज, देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज. जब हम कोई काम किसी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट के देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक एक जिम्मेदारी आती है, और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट अगर हुआ है, ना किसी को ज्यादा टास्क है ना किसी को कम टास्क है, तो ये जो एम्प्लॉयज है प्रॉपरली अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन और साथ ही रिडक्शन इन वेस्टेज. वो हमारे लिए एकदम कंपनी के लिए ग्रोथ का काम करता है, प्रोडक्शन में इंक्रीज का काम करता है, और साथ ही जो वेस्टेज होता है वो बहुत ही हमारा कम हो जाता है. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल. तो जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, एक
एक ही काम हम 2 डिपार्टमेंट को देते हैं या एक ही काम हम सब लोगों से करवाते हैं, ये सब नहीं होते हुए हम साथ ही हम ये काम प्रॉपरली डिवाइड करते हैं और एक अच्छा से इफेक्टिव डेलीगेशन होता है. So organizing facilitates administration as well as operation. Next point is brings specialization. Organizing brings specialization. Specialization means to be specialized in particular field. किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड होना, एक्सपर्ट होना, दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कैसे स्पेशलाइजेशन मिलता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक नेटवर्क है, एक पूरा एक नेटवर्क है. किस चीज का? रिलेशनशिप का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, जहाँ पे हर एक को काम बांट के दिया जाता है, प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है हर यूनिट में और हर डिपार्टमेंट में. तो दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्क जब हम बांट के देते हैं तो हर एक के ऊपर सेम बर्डन होता है. The work should be properly divided. So it brings specialization in various activity of the organization. अगर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड पर्सन को देते हैं तो he will be more capable of doing that work. He will do more appropriately, more correctly. For example, suppose कोई जैसे क्रिकेट है. क्रिकेट में हर एक प्लेयर का एक एक रोल होता है. कोई बैट्समैन है तो कोई बॉलर है या फिर कोई विकेट कीपर है. एंड दे ऑल नो देयर वर्क. वो अपना काम अच्छे से जानते हैं और वो अपने काम में एक्सपर्ट है, तभी उनको वो काम दिया गया है. दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्क. अगर हम उनका काम जो है एक्सचेंज कर दे, जैसे बैट्समैन को हम बोलेंगे विकेट कीपिंग करो, तो ही वोंट बी एबल टू डू प्रॉपरली. ही माइट नॉट बी स्पेशलाइज्ड इन दैट. जरूरी नहीं है कि वो भी काम अच्छे से करे. उसका अगर बैटिंग का काम है, अगर हम उसको वो ही काम देते हैं तो वो प्रॉपरली कर सकता है. उसी तरह बॉलर को हम बोलेंगे कि आप बैटिंग करो, आप हिटिंग करो, तो शायद वो भी उतना प्रॉपरली नहीं कर सकेगा. बट अगर उनका जो स्पेशलाइजेशन है, अगर हम उनको वही काम देते हैं, दे विल बी मोर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क. सो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. अगर आप आपके काम में स्पेशल हो, स्पेशलाइज्ड हो और आपकी जो भी एक्टिविटी आपको दी है एज पर योर स्पेशलाइजेशन, सो इट विल टोटली लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही होगा, बिकॉज इट विल लीड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. आप अपना काम अच्छे से करोगे, एफिशिएंटली करोगे और आपके काम का आउटपुट कंपनी को अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा उससे. Now next is defines job properly. Organizing defines job properly. Organizational structure helps in putting right job which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skill and experience. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले हर एक को प्रॉपर जॉब डिफाइन करना जरूरी है. डिफाइंस प्रॉपर जॉब मीन्स जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसका स्किल है और जिस चीज में उसका एक्सपीरियंस है, अगर वो ही काम हम वो प्रॉपर इंसान को देते हैं, देन ही विल बी डूइंग मोर परफेक्टली, मोर करेक्टली हिज जॉब. तो पुटिंग राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट. जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट है या एमबीए है या फिर साइंस ग्रेजुएट है, उनके लिए उनके फील्ड का अगर जॉब उनको मिलता है तो they will be doing their job more efficiently, more properly, according to their skill, according to their qualification, according to their experience. This is helping in defining the jobs properly, which clarifies the role of every person. तो अगर हर एक को अपना जॉब प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, बताया गया है और उनके ही फील्ड का वो काम है, सो
they will be doing their job properly. तो उसके वजह से उनका जो भी रोल है कंपनी में उनको क्लियर हो जाएगा और वो अपना काम एकदम एफिशिएंटली करेंगे. So organizing helps in defining job properly. Now our fourth point is clarifies authority and responsibility. Organizing clarifies authority and responsibility. Organizational structure defines the role to every manager. ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले ही हर मैनेजर को अपना रोल पता होता है, उसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है. So this can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to exercise those power. तो हर एक मैनेजर को जो जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन होता है कि उसको किन किन चीज़ का पावर है और वो कौन से पावर्स यूज कर सकता है, सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. उसको ये क्लियर होना चाहिए और होता है कि उसको कौन से पावर्स उसके हाथ में है, वो कौन से पावर्स को यूज कर सकता है ताकि गलत अपने पावर्स का वो गलत इस्तेमाल ना कर सके. वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू मैनेजर्स वर्किंग. तो अगर उसको अपना जॉब, अपनी ऑथोरिटी, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर पता होगा अब मैनेजर को, तो वो अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करके अपने काम में एफिशिएंसी बता के अपना काम स्मूथली कर सकता है. ही विल डू हिज जॉब प्रॉपरली. ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी he will do his responsibility, he will undertake his responsibility properly, and this will help in this will helps in increasing productivity of the company. तो अगर मैनेजर अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू द productivity, it will leads to high productivity of the company. Next our point is establish coordination. This function helps in establishing coordination among different departments of the organization. Now, organizing helps in establishing coordination. Coordination होता क्या है? Coordination means जब सब लोग काम कर रहे हैं तो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना, आपस में एक दूसरे का काम समझ के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम करना. तो ऑर्गेनाइजेशन में organizing is the important function which leads to coordination. This function helps in establishing coordination among different departments of the organization. हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. इसीलिए कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम ये सब काम प्रॉपरली कर पाते हैं. It creates clear-cut relationship among position and ensures mutual cooperation among individuals. So organizing creates what? It creates clear-cut relationship among the position and ensures cooperation. हर एक को अपनी पोजीशन का, अपने कंपनी के साथ रिलेशन का, अपने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन का प्रॉपर अंदाजा हो जाता है कि उनको किस तरह से काम करना है और फिर वो आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं. कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. अगर हमको सारी एक्टिविटी जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी काम स्मूथली नहीं हो पाएगा. सो हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल ऑफ मैनेजर्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. तभी वो वहाँ पे स्मूथली फंक्शन कर पाएंगे और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है वो स्मूथली कंडक्ट हो पाएगी. सो organizing establishes coordination. Now our next point is help
helpful for effective administration. Organizing is very much helpful for effective administration work. This function determines different position, departments, activities, and the role are closely structured. The function determines different position. जो organizing function है ये हमको जो एम्प्लॉयज है या जो मैनेजर्स हैं उनको हर एक को उनकी अपनी डिफरेंट जो पोजीशन है कंपनी में वो प्रॉपरली बताता है. हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज उनका रोल ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड किया होता है कि हाउ दे हैव टू वर्क, व्हाट आर देयर रोल्स, व्हाट आर देयर पावर्स, उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड नो वेरी वेल. The utmost care is taken while placing right person in right job with right authorities and responsibilities. तो जब भी को अपॉइंट करने का टाइम होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर ली जाती है कि ये सही जो जॉब है, जो सही कैंडिडेट है वो सही जॉब के लिए चुना जाए और उसको प्रॉपर ऑथोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि कोई भी मिसयूज ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो और हर एक को अपना काम प्रॉपरली वहाँ पे डिफाइन किया जाता है ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो इफेक्टिवली हो एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द growth of the organization. So, it is achieved through division of work and delegation of authority. तो जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करना ज़रूरी होता है और अथॉरिटीज़ को प्रॉपरली डेलीगेट करना भी ज़रूरी होता है. तो ये तब हम अचीव कर सकते हैं जब हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजिंग के वजह से ही हम we can do division of work properly and delegation of authorities also properly. This all leads to efficient and effective administration. अगर हम properly काम divide करके दे रहे हैं और हर employee को proper amount of work if they are getting whatever task we are giving it is properly divided, then it will totally leads to efficient and effective administration work. There will be more efficiency in their work or also more smooth work will be conducted by them. Now our next point is helpful for growth and diversification. Organizing is helpful for growth and diversification. The growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning. हर organization या हर कंपनी उसका जो भी ग्रोथ है या उसकी जो भी प्रोग्रेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग. अगर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी काम स्मूथली एंड एफिशिएंटली नहीं हो रहा है, देन दैट कंपनी वोंट ग्रो. वहाँ पे वो कंपनी की ग्रोथ वहीं रुक जाती है. तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई भी काम स्मूथली एंड एफिशिएंटली होना ज़रूरी है और इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स फॉर growth and diversification. Clearly defined roles and responsibilities, coordination, and among all level of management, personnel, and use of appropriate control techniques bring efficiency at workplace and organization grows well. So, जहाँ भी प्रॉपर रोल्स अगर डिफाइन किए गए हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है और साथ ही कोऑर्डिनेशन है सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज, सारे मैनेजर्स के बीच में, सारे पर्सनल स्टाफ के बीच में, सो दे विल बी functioning very smoothly and use of appropriate
कंट्रोल टेक्निक ब्रिंग्स एफिशिएंट एट वर्क प्लेस। तो जो भी उनकी कंट्रोल टेक्निक है अप्रोप्रिएट अगर होगी तो वहाँ पे जहाँ भी ये काम करते हैं वहाँ पे उनके काम के बीच में एफिशिएंसी होगी, स्मूथनिंग होगी, सब कुछ स्मूथली चलेगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी ही होगी। So this is possible only when the organization structure is well defined. जब organization structure properly defined होता है, well defined होता है, हर एक को अपना task पता होता है, हर कोई अपना job जानता है, हर कोई अपना role जानता है, तभी वहाँ पे smooth functioning होती है and it will be efficiently done at the workplace. So work has to be done efficiently, smoothly, and it must leads to the growth of organization. Organization में growth का काम करना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली करते हैं, हम सारा काम प्रॉपरली अरेंज करते हैं. So organizing is helpful for growth and diversification in the company. Our next point is creates sense of security. Now, security is organizational structure clarifies the job position. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमको हमारा जॉब पोजीशन जो है वो क्लियरली पता चलता है. इट क्लेरिफाइज द जॉब पोजीशन. इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रॉपरली डिफाइन होता है कि कौन से पर्सन की क्या ड्यूटीज है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो एम्प्लॉयज होने दो या वो मैनेजर होने दो या फिर कंपनी का सीईओ होने दो. तो वहाँ पे it should be clearly mentioned what all duties has to be done, what all responsibility has to be done. Everyone can work accordingly. So after knowing their responsibility, after knowing their duties, they will work accordingly. Clarity in job and power helps in increasing mental satisfaction. तो अगर हमको हमारा जॉब ठीक से पता है, हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ऑथोरिटीज पता है, तो वी गेट द पावर टू डू दैट जॉब एंड साथ ही साथ आवर मेंटल satisfaction is also important. So when we are clear about our job, our powers, we get a mental satisfaction and we get a sense of security. So same is here related to employees. When they know their job, उनको उनका जॉब पता होता है, उनको क्या करना है, उनका टास्क क्या है, उनका वर्क क्या है, और साथ ही साथ उनको जब ये पता होता है कि उनको कौन सी ड्यूटीज निभानी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, तभी उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है दैट यस वी कैन डू दिस जॉब एंड एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आ जाती है कि वी आर सिक्योर दैट वी आर गेटिंग दैट जॉब दैट वी कैन डू स्मूथली. So there it creates a sense of security among the employees. जब वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली होगा तो हर एम्प्लॉय को पता होगा कि उसका रोल क्या है कंपनी में. he will be knowing his job properly, he will be knowing his responsibilities, he will be knowing his duties. So this will bring a satisfaction in his mind and it will creates a sense of security. So organizing creates a sense of security. Our next point is scope for innovation. Now, what do you mean by innovation? Innovation means something new, new ideas, something creative. So, in any organization, there is also always a scope for innovation. Organizing function clears the role and activities to be performed. ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हर एक के माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि व्हाट द रोल इज एंड व्हाट ऑल द एक्टिविटीज दे हैव टू बी परफॉर्म. एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज. दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज. सो एम्प्लॉयज को एक जब उनको उनका रोल पता होता है, उनकी एक्टिविटी पता होती है, तो दे ट्राई टू इनोवेट समथिंग न्यू. कुछ नया
ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई नया आइडिया से वो अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं. सो दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर. मैनेजर को भी एक तरह से कुछ नई बातें पता चलती हैं, कुछ नए चीजें सीखने मिलती है, to develop the talent and flourish the knowledge. So he can also develop the talent, he can also flourish the knowledge, and he will give more scope to the employees to complete their work. So this scope for innovation into adopting new changes in method of work is possible only through a set of organizational structure. तो इनोवेशन का जो स्कोप है और जो नए आइडियाज को अडॉप्ट करने का, जो चेंजेस को अडॉप्ट करने का मेथड है, ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रॉपरली मेंशन हो. So scope for innovation into adopting new changes in method of work is possible when organizing function is properly done. Organizing की वजह से ही न्यू आइडियाज को स्कोप मिलती है, एम्प्लॉयज को कुछ नए नए तरीके से काम करने का मौका मिलता है, एंड साथ ही साथ वो अपना काम अच्छे से एफिशिएंटली और स्मूथली कंप्लीट कर पाते हैं. एंड आवर लास्ट पॉइंट इज helps in optimum utilization of resources. As you all know, students, that optimum utilization of resources is very much necessary in every organization, in every company, and you also know what does it mean. Optimum utilization means maximum utilization. Whatever resources we are having, we should utilize it at maximum, or we can say 100%. We have to utilize it 100%. This function provides different employee according to the job specification. So different employees according to the job satisfaction, job specification. Due to this, specialization of work become possible. जब कोई भी हम resources का optimum utilization करते हैं, that means we are not wasting the resources, we are doing it properly, smoothly, efficiently, then only it will lead to optimum utilization of resources. तो इसी से पता चलता है कि आप वो चीज में स्पेशलाइज्ड हो, एक्सपर्ट हो, तभी आपने कम से कम वेस्टेज किया है, रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइज किया है या 100% यूटिलाइज किया है. सो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल ड्यू टू दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेस एट इट ऑप्टिमम लेवल. तो जब हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ों को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करते हैं, सो दैट डिजायर रिजल्ट एंड अचीव विद इन डिजायर्ड पीरियड. ताकि हमारा जो डिजायर पीरियड है वो डिजायर समय पे हम अचीव कर सके और हमारा जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो रिजल्ट हमको चाहिए, हमने जो टारगेट रखा है वो हम प्रॉपरली अचीव कर सके. सो we can say that the organizing helps in optimum utilization of resources. So here we have seen all the 10 importance of organizing, all the 10 points we have seen here. We will do a short revision of this topic which we have seen now. We have seen, we have started from organizing. Organizing, it what it means? It means to organize, it means to do the activities in grouping, assign the activities in grouping. We have seen the meaning, that the organizing is a process of identifying, bringing the required resources together. Then we have seen the definition given by Noose, Coons and O'Donnell, that organizing involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assignment of activities to appropriate departments, and the provision of authorities, delegation and coordination, given by Coons and O'Donnell. Then we have seen the different points, that is the importance of organizing,
First is facilitate administration as well as operation. Second, it brings specialization. Then it defines job properly. Fourth was clarifies authorities and responsibilities. Fifth is establishes coordination. Sixth, helpful for effective administration. Seventh is helpful for growth and diversification. Eighth is create sense of security. Ninth is scope for innovation. And lastly, 10th is help in optimum utilization of resources. Hope you all have understood about the organizing function. Okay.